Hi guys, I'm Dua, a core team member of Girls Fly Pakistan team, and I'll be your host for today's session. Girls Fly is an American-based international NGO to guide the youth and is currently operating in 16 countries. Specifically, Girls Fly Pakistan is trying to bring international opportunities to the youth here. Anyways, with that being said, I welcome everyone to today's session. We got a lot of requests for that scholarship, and we have a special speaker to guide everyone today. Hareem Akhtar, she is a journalist, works in Berlin currently, project manager specializing in peace, security, and global stability. She was a 2015 Sister Element, and she's a dad scholar. With that being said, I'd like to give the mic to Hareem now. Hello, good day. Good evening for Pakistan. I hope everybody's doing great today, and I'm happy to be here to share my experience and hopefully try to help anybody who is aspiring to be a DAAD scholar at this point. That being said, I had my scholarship experience in 2021 with a very specific DAAD program, and I will be giving a little overview of how it works because it is a little complicated to apply to DAAD, but luckily it is a bit less challenging as compared to the other scholarships, as compared to, say, Commonwealth or others. So it's actually easier to get into the DAAD only if you just navigate through the process of it. That being said, I would then maybe ask that if this session would be only proceeded in English, लेकिन अगर बकाया सबके लिए अगर उर्दू में बात करना बेहतर है तो मैं उर्दू में भी बात कर सकती हूँ. मेरे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but I think I'll do it little bilingually. So I have a little presentation for everybody to see. Just मैंने main points cover किए हैं कि how basically you become the perfect candidate for DAAD at least. And navigating through the entire process, because it might seem a little scary at first because DAAD does not really have deadlines, or it doesn't have a specific timeline. जिस तरह बकाया स्कॉलरशिप्स की होती है, जिससे कॉमनवेल्थ हो जाए या फुल ब्राइट हो जाए, DAAD मुख्तलिफ टाइम पे खुलती है और मुख्तलिफ तरह की अवेलेबिलिटी होती है उसमें. आर्टिस्ट के लिए अलग होती है, साइंटिस्ट के लिए अलग होती है, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए अलग होती है, और सोशल साइंस वाले लोगों के लिए अलग होती है. जो मेरा प्रोग्राम था, बिकॉज माई डिग्री वॉज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, तो मेरा फोकस सोशल साइंसेस में था, लेकिन DAAD में ऑलमोस्ट हर किस्म की मेजर्स की के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी आज के हाउ डू यू फाइंड दीज, क्योंकि वो इस तरह एडवर्टाइज नहीं होता जिस तरह से कॉमनवेल्थ एडवर्टाइज होता है या शिवरिंग एडवर्टाइज होता है. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू नेविगेट कि आपको आपके लिए जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाए. सो दैट बीइंग सेड, I will share my screen now to hopefully, I hope this is visible. Agar visible nahi hai, to please do speak up. I hope this is visible to everybody. So today my presentation is titled A Focus Guide to DAAD Scholarships and Opportunities and All You Need to Know to Stand Out from the Crowd, which of course is basically the main focus of any scholarship as per se. So let's start with the basics. Well, I was already introduced. Thank you so much for the team to introducing me. So I think I can just skip through it to the important part. So first of all, the biggest thing that you need is starting your journey. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हमने यूनिवर्सिटी भी रिसर्च नहीं की, हमें नहीं पता DAAD क्या है, लेकिन हमें स्कॉलरशिप चाहिए. तो मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता हो कि आपने DAAD पे आना है. फॉर एग्जांपल, मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा प्रोग्राम कौन सा है और मुझे पता था मैंने किस यूनिवर्सिटी को एम करना है. तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का सबसे बड़ा जो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है इज नोइंग व्हाट यू वांट एंड नोइंग हाउ टू अप्लाई फॉर इट. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट होपफुली आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल फॉर यू as possible. So first would be, of course, try researching the degree and the country that fits the need of your ideal degree program. Germany is a great country to be in. उनका social security system works great. Students के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं. उसके बाद education मुकम्मल तौर पे free है. It doesn't matter कि आप scholarship पे हो या आप scholarship पे नहीं हो.
दोनों केसेस में आपकी एजुकेशन फ्री है। स्कॉलरशिप पे होते हुए ऑफ कोर्स आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट नाम की चीज नहीं बनवानी पड़ती, क्योंकि उसमें फिर जो जर्मन गवर्नमेंट है वो आपको बेसिकली आपका सारा खर्चा पूरा करती है, आपकी टिकट से लेके आपके मील से लेके आपके अकोमोडेशन तक। लेकिन फॉर सम रीजन लिमिटेशंस के अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं है तो आप फिर भी ऑफ कोर्स जर्मनी इज स्टिल अ वेरी 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 गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आपके मेजर्स इंजीनियरिंग में है, लॉजिस्टिक्स में है, या अगर आपका मेजर्स जो है वो टेक्निकल साइड में है, जैसे आईटी हो जाए या कंप्यूटर साइंसेज हो जाए एक्सेट्रा। उसके लिए ये है कि उसके थोड़ा सा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है कि आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट लेना पड़ता है, बट सिंस मेरा फोकस यहाँ पे स्कॉलरशिप पे है तो आई विल जस्ट फोकस ऑन द स्कॉलरशिप फर्स्ट है, पहली बात। दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन। हर स्कॉलरशिप की ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिमिलर होती हैं और बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है कि अगर आपके पास वो पहले हो, क्योंकि डीएडी अमूमन सिर्फ 1 महीने की विंडो के ओपन होता है और 1 महीने में अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तब सारा बनाना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है आपको उस टाइम पे अप्लाई करना। तो मैं हमेशा ये उन स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखा करें। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? आपका मोटिवेशन लेटर आता है, आपकी सीवी आती है, आपके रेफरेंस लेटर्स आते हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स आते हैं सारे, अगर लिमिट आपका एक्सपीरियंस है वर्क तो आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आते हैं, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स आते हैं, जो लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका जो डिग्री है वो जर्मन में नहीं है। और अगर आपकी डिग्री जर्मन में है तो ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है बिफोर हैंड, बिफोर द स्कॉलरशिप विंडो ओपन्स, क्योंकि द अर्लियर यू अप्लाई द बेटर इट इज, क्योंकि इनको फिर आगे बहुत सारे कभी कभार होते हैं मसले। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि उनको अटेस्टेशन चाहिए होती है उनकी डिग्रीज पे, तो ये अटेस्टेशन का प्रोसेस, एचएससी का प्रोसेस हम सबको पता है कि कुछ वक्त ले लेता है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप उसी विंडो में अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे चांस मिस हो जाए। तो आई ऑलवेज रिकमेंड ये सब चीजें पहले से आप करके रखें। और इसके बाद इट इज ऑलवेज ईजियर कि जब आपके पास एक आइडिया होता है कि आपका गोल क्या है, आपने फ्यूचर करियर स्टडीज, आपको क्या जर्मनी में रहना है, आपको क्या यूरोप में माइग्रेट करना है, या आपको वापस आना है, उस हिसाब से ऑफ कोर्स यू देन डिसाइड ऑन हाउ यू गोइंग टू स्टडी। बिकॉज अगर आपने जर्मनी में ही रहना है स्टडीज के बाद, जो लक डीएडी अलाउ करता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अलाउ नहीं करते, जैसा शिपिंग अलाउ नहीं करता, कॉमनवेल्थ अलाउ नहीं करता, फुल ब्राइट अलाउ नहीं करता, वो आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं कि यू विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। बट लकीली डीएडी का ये फायदा है कि वो आपसे ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं करवाते। तो अगर आपको बाद में, लाइक माई सेल्फ, अगर आपको बाद में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप जर्मनी में रह सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए जर्मन जुबान आपका बोलना बहुत जरूरी है। So that being said, of course, that would then depend on what your specific requirements are in that case. Next, a little about DAD. DAD है क्या? So it's the biggest exchange service that the German government provides, and it is supporting many international students and academic corporations at one point. DAD itself the main organization, और उसके नीचे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज भी आती है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। तो आप जैसे इसको रिसर्च करते रहेंगे आपको पता लगता जाएगा कि सिर्फ डीएडी अलोन नहीं है कि जो आपको फंड करती है, बट देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल देयर इज हांस फ्रीडल ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ कपल मोर जो आपको फंडिंग साथ में कर सकती हैं अगर आप डीएडी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। This is a little history about it. इसका हेडक्वार्टर्स बॉन में है, 15 रीजनल ऑफिस है, लकीली पाकिस्तान में भी इसका ऑफिस है इस्लामाबाद में। तो इन केस अगर आपको वहां से कोई जरूरत है तो आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट्स उस ऑफिस में। आप उनको ईमेल लिख सकते हैं कि अगर आपके बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चंस है अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। आगे, हाउ डू यू लुक फॉर द आइडल प्रोग्राम? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि यस, हमें पता है कि हमारा मेजर से कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें आगे स्पेशलाइज क्या करना है, क्योंकि डीएडी बेसिकली मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है, बैचलर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो बैचलर्स करके पाकिस्तान से आप आगे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वुमेन स्टूडेंट्स के उनको आगे किस दिशा में जाना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि डीएडी की वेबसाइट है जो इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैंने हाइपरलिंक किया है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग से कैटलॉग ओपन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये होता है कि डू वी रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस? नॉट नेसेसरली। जिस तरह शिविंग का केस है, यू नीड 2 years of work experience, डीएडी के लिए इट्स नॉट नेसेसरी।
डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कौन सी। फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोग्राम था दैट हेलमेट श्मिथ प्रोग्राम, उसके लिए हमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी अपना बैचलर्स खत्म करने के फौरन बाद अप्लाई किया था एंड आई गॉट इट। तो डीएडी की अच्छी बात यह है कि डिपेंड करता है आपके डिग्री प्रोग्राम पे और टाइप ऑफ डीएडी के क्या वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं है। दूसरी बात, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि जो आपका फाइनल ट्रांसक्रिप्ट या आपकी फाइनल डिग्री रिक्वायर करते हैं। डीएडी इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइम इज अबाउट 6 months, तो अगर आपकी 6 months में आपकी डिग्री खत्म हो रही है तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर डीएडी। मैंने तभी किया था जब मेरी डिग्री अभी खत्म हो रही थी, मतलब थीसिस लिख रही थी बैचलर्स में, because the entire period takes around 6 months to 1 year. अभी at the moment जो पिछले साल का intake है, अभी उनको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं, दिसंबर में इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट प्रोसेस पास कर लेते हैं और आगे फिर उनको डीडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो मेरा प्रोग्राम है वो ओपन होता है अराउंड समर्स में और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो ईयर राउंड ओपन होते हैं। वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि हाउ डू यू सर्च योर specific program, whatever you want to get into. जहाँ तक requirements की बात है, DAD also has very typical requirements like a certain GPA, लेकिन अगर आपका GPA बहुत अच्छा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास relevant research work है, projects है, outstanding initiatives है, आपका background है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो which makes you stand out in the crowd, that is also very 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 interesting because DAD की सबसे अच्छी बात है, I have been a part of the selection committee for a while. इसमें they're not looking for people who have a 4x4 or just a perfect GPA. They're looking for candidates that have potential क्योंकि ये basically एक investment है. They think of you as investment कि आप पे invest किया जाए तो आप अपने country को कितना वापस दे सकते हो। So जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कुछ GPA ही आपका दारोमदार हो या आपका स्टैंडर्ड हो। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रनिंग अ बिजनेस ऑफ योरसेल्फ या आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी, इन केस आपकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह जैसे डिग्री आपकी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल एक्टिव है या आपने कोई ऐसी चीज या आप एंटरप्रेन्योर है एटसेट्रा एटसेट्रा, समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, दैट इज व्हाट दे वांट। They do not want to collect a bunch of people who have A grades, but people who genuinely have potential to make a difference. So this is something that I really like about the DAD, that they do not just look at the GPA. Yes, GPA is important, but it's not so important when it comes to research work, projects, initiatives, etc. और अगली बात कि अगर कुछ स्टूडेंट्स, वैसे तो मुझे ये लगता है कि हर स्टूडेंट काबिल होता है, हर स्टूडेंट has what it takes to get the scholarship. But if you think for whatever reason you think that you cannot win a scholarship, that's no problem. Countries like Germany or Finland offer free education with excellent quality, and there's millions of student jobs. यहाँ पे आके I've seen so many students of different origins from around the world जो यहाँ पे self study पे आ जाते हैं और फिर Germany उनको basically student jobs और इस किस्म के इनिशिएटिव से भी हेल्प कर देता है क्योंकि this is something which is very prevalent here. तो 20 hours का आपके पास अलाउंस होता है टू वर्क, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसा डिलॉयट हो गया या एरिक्सन एंड यंग्स हो गया एटसेट्रा, वो स्टूडेंट नाम की जॉब ओपनिंग्स रखते हैं और एटलीस्ट 3 से 4 वर्क स्टूडेंट्स वो हर साल अक्वायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं. सो इन केस यू थिंक दैट यू कैन नॉट win the scholarship, this is enough to support you and your living expenses in case you think that you cannot win the scholarship. And then, in case, of course, do you wish to stay longer? Europe is the destination. Why? Because अगर आप US जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, etc. उसमें, like I said, आपको एक bond sign करना पड़ता है कि जिसमें you have to return after your degree program and you have a limited allowance of what you can do or what you cannot do. In Europe, specifically in Germany, that is not the case. Yes, if you have the DAED, और आपको महाना वजीफा आ रहा है, आपको स्कॉलरशिप आ रहा है पूरे महीने, जो अभी एट दिस मोमेंट ऑलमोस्ट 1000 यूरो के बराबर है. आपको हर महीने 1000 यूरो मिलेगा. इसके अलावा कि आपके स्टडीज और आपके सब कुछ फ्री है, आपकी टिकट्स वगैरह सब पेड होंगी और आपको स्टूडेंट टिकट मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको जो आपका रीजन है उसमें आपको सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी. लेकिन इन केस आपको, जिस तरह मैं यहाँ पे रह गई और आई गॉट अ जॉब हियर एंड आई स्टार्टेड लिविंग हियर एटसेट्रा, if you think that you would like to stay in Europe, this is a very good opportunity for you to stay in Germany क्योंकि DAD के students prefer होते हैं when it comes to the job market. But learning German is important.
Yeah. But one hurdle that I must speak with, it's not always so good and dandy. सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है. जर्मनी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी. अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पे सारा सिस्टम स्लो हो जाता है. कुछ स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है, आपको रेजिडेंस परमिट लेना होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है वगैरह वगैरह वगैरह. Until unless you do not have a bank account open, you cannot receive your scholarship. लेकिन of course उसके लिए भी guidelines available होती हैं. तो how to navigate the scholarship? So in case, hopefully, if anybody of you gets shortlisted for the DAD, I'm happy to help. आपको बताने के लिए कि आप ब्यूरोक्रेसी को अर्ली ऑन कैसे स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप इसको जितना लेट करोगे उतना आप अफेक्ट होगे. So you will need a bank account to open yourself registered in Germany as a student as well as registered in the university. This can seem like something very scary at first, but if you know how to handle it and if you know how to do it and you have made your research on it beforehand, then it can be a little easier for you. But this is one downside, and I think it is very important for students to be prepared for it before they come here, because जब वो आके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये सब issues हैं, तो वो अमूमन घबरा जाते हैं और फिर they make mistakes, unfortunately. So this is also something कि अगर आपका प्रोग्राम है कि आप यूरोप में कहीं भी आएंगे, तो please do research about the bureaucratic processes there and how to make sure that you are not doing anything wrong. Otherwise, you might face situations that are not very pleasant. Right, moving on. A little about DAD. DAD is one of the most simplest program to apply. मेरा खुद का experience, I got shortlisted for Commonwealth. I also applied for Fulbright. I also got selected for a different US exchange program. लेकिन मेरे लिए जो सबसे आसान एप्लीकेशन थी वो DAD की थी, क्योंकि बिल्कुल आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डालनी है, और एक एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी और DAD को सेम एप्लीकेशन जाएगी. पहली एप्लीकेशन होगी वो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे. यूनिवर्सिटी जो भी आपकी DAD की वेबसाइट पे गिवन होगी, उसमें एक स्पेसिफिक पोर्टल या एक स्पेसिफिक लिंक गिवन होगा जिस पे आप जाएंगे, which is only for DAD scholars. अमूमन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स में दो होते हैं, एक होते हैं फॉर द नेशनल स्टूडेंट्स और एक होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. जो DAD से लिंक्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें 3 लिंक्स होते हैं. पहला फॉर नेशनल स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और तीसरा फॉर DAD स्टूडेंट्स. तो इन केस यू विश टू अप्लाई फॉर DAD, यू विल अप्लाई डायरेक्टली देयर, और वो सिर्फ एक एप्लीकेशन आपके लिए दोनों स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी के लिए होगी. बकाया स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ में आपको यूनिवर्सिटी के लिए अलग अप्लाई करना होता है और आपको कॉमनवेल्थ के लिए अलग अप्लाई करना होता है. सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली फाइंड कंफर्टेबल अबाउट DAD, जस्ट वन एप्लीकेशन. दूसरी बात यह है कि DAD offers more than 120 programs in many fields, especially students from developing countries. Developing countries like Pakistan are preferred when it comes to giving scholarships. DAD का एक प्रोग्राम है जिसको हम EPOS कहते हैं, EPOS. वो होता ही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, मतलब आपको जो कंपटीशन है वो बकाया कंट्री से कम होगा. फॉर एग्जांपल यूरोप से नहीं होगा या US से नहीं होगा, जो डेवलप्ड वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है उनमें से नहीं होगा, बल्कि डेवलपिंग में होगा. अगेन एट द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन EPOS की भी गिवन है, जो हर पूरे साल ओपन रहता है. उसके मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स पूरे साल ओपन रहते हैं और आपको सिर्फ देखना होता है कि आपकी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम की टाइमलाइन क्या है. और it is one of the most generous scholarships जो आपको यूरोप में मिलती है, because I do have experience of talking to scholarship students from Italy as well as from France, from Netherlands, from the UK, also from Belgium, etc. and many more. DAD is one of the most well paid. आपको 1000 यूरो मास्टर स्टूडेंट्स को और कोई स्कॉलरशिप नहीं देती. PhD स्टूडेंट्स के लिए it's about 1500 euros per month, और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए it's about 1000 euros per month जो आपका स्टाइपेंड होता है. इसके अलावा ऑफ कोर्स आपकी टिकट्स, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी पेंशन इंश्योरेंस, आपकी केयर इंश्योरेंस, वो सब के सब जब गवर्नमेंट हैंडल करती है. ऑफ कोर्स जब आप आएंगे यहाँ पे तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपका हेल्थ 100% फ्री होगा, एंड यू वुड नॉट हैव टू पे फॉर इट. बकाया कंट्रीज में ये कभी कभार पॉसिबल नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली, बट DAD is one of the most generous scholarship you can get in Europe. For DAD, well, it is always better that you know a bit of German, because it increases your chances of selection. अब जब भी DAD के कोई भी प्रोग्राम देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड हैं जर्मन और इंग्लिश के, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ जर्मन में होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब डेवलपिंग कंट्रीज में से ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने B1 इज लाइक यू कैन हैव सिंपल कन्वर्सेशंस इन दैट लैंग्वेज। अगर आपने B1 जर्मन सीखी हुई है तो आपका सिलेक्शन रेट 50% तक बढ़ सकता है, क्योंकि उन डिग्री प्रोग्राम्स में बहुत थोड़े लोग अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश में सब अप्लाई करते हैं, इंग्लिश इज अ वेरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 70% ऑफ द वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश इन सम फॉर्म, broken to very fluent. So better, very much better if you start learning German and you do have some proficiency in German. उसमें फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में ये भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि IELTS इज एन एक्सपेंसिव टेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है जिस तरह IELTS which is recognized globally and for master degrees for Europe or even for PhD degrees, it's always better to have certifications of whatever you are doing. So if German है तो it's better to have a Goethe certificate, or if English है तो it is better to have your IELTS. It just increases your chance of selection, क्योंकि Germany is not an English speaking country, तो उसमें ऐसा भी होता है कभी कभार कि वो आपकी यूनिवर्सिटी की जो कंफर्मेशन होती है वो काफ़ी होती है। अगर वो आपको बता दे कि आपका सारी डिग्री इंग्लिश में थी तो वो चल जाता है, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ IELTS होना, क्योंकि it just increases your chance to get selected. So in case you have an IELTS and a score that is above 6.5, good, very good, you're already good to go with this. Going forward, yes, always keep updated. This is also very very important, क्योंकि जो अपडेट्स होती है वो चेंज होती है, वीजा सिस्टम्स चेंज होते हैं हर साल, रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो देयर इज जस्ट वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बट एवरी कंट्री हैज अ कोटा। तो उसी कोटे intimidating, लेकिन you could be one of those two people. लेकिन ये एक डिग्री है, there are many different types of DAD you can apply. So you should always keep updated about scholarship openings, timelines and requirements. आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन कब है। जिस तरह मुझे रटा हुआ है कि मेरी जो HSP हेल्मट श्मिट प्रोग्राम है वो मई में ओपन होता है और वो जून में बंद हो जाता है, ये बहुत हो तो वो जून में ओपन होता है और वो जुलाई में बंद हो जाता है। First, this is something important, because you should be prepared. Like I said, you should be prepared before this time comes, and you just apply for it, क्योंकि बीच में उनकी काफी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज भी करवाते हैं, और कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आपको वो पर पोस्ट भी भेजने पड़ते हैं, और आपको अंदाजा है कि पोस्ट को पाकिस्तान से यूरोप में आने में एटलीस्ट 10 दिन लग जाते हैं। So just be aware of timelines, requirements, and when your scholarship opens. Best tools, also social media groups, scholarship, बहुत सारी social media groups हैं, scholarship websites हैं, Facebook पे बहुत सारे groups हैं, बहुत सारे लोगों ने खोले हुए हैं, opportunity corner, scholarship networks, बहुत सारे, I can name so many, जो इन अपडेट्स को बार बार देते रहते हैं और आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं कि अब ये ओपन होने वाला है या अब ये क्लोज होने वाला है। So it's really good if you use your internet in the best way possible, or you use Facebook or your social media groups or social media platforms in the best way possible, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका जो स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोग्राम है वो कब ओपन हो रहा है, वो कब क्लोज हो रहा है, और ताकि आप मेलिंग लिस्ट में अपने आपको मेलिंग लिस्ट में भी कर दें रजिस्टर टू स्कॉलरशिप नेटवर्क्स, क्योंकि वो आपको अपडेट्स आपके ईमेल पे भेजते रहते हैं इन केस आपको टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया को यूज करने का, या इफ यू आर समबडी हु डजंट गो ऑन सोशल मीडिया दैट मच एज लाइक आई डोंट, तो मैं अपने ईमेल्स ज्यादा जल्दी चेक करती हूँ एज कम्पेयर टू अपडेट्स ऑन सोशल मीडिया। तो मेलिंग लिस्ट्स भी होती हैं, वेबसाइट्स भी होती हैं, मीडिया सोशल मीडिया ग्रुप्स भी होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हिच आई थिंक आर अ ग्रेट रिसोर्स। और मेरे ख्याल से अगर आप 5-10 मिनट या 5-10 मिनट एक दिन में दे भी दें बकाया अपने एक्टिविटीज के साथ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट ऑलरेडी। This is something that I always recommend, that never wait for the last days to apply. Always begin early and apply early. Like I said, you don't know आगे उनकी क्या requirements हो, अगर वो आपसे कोई और documents demand कर लें या वो हर form में आपसे documents demand कर लें, आप हमेशा apply early. सबसे बेहतर ये होता है कि आपकी application सब कुछ done हो at least 2 weeks before your program deadline closes. 2 weeks. That is the least you can do. Do not apply on the last date.
डू नॉट अप्लाई ऑन द लास्ट वीक, क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है उस टाइम पे, और खुदा ना खास्ता इशू हो जाए और एप्लीकेशन प्रोसीजर जो टाइम लाइन है वो निकल जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होने के वजह से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, और आपका जितनी भी मेहनत है पिछले साल की वो सारी ज़ाया हो जाएगी, और आपको सिर्फ अगले साल पर चांस मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए. सो ऑलवेज अप्लाई early, never wait for the last days to apply, always. All right, ये थोड़ा सा bonus session है because that is something that I do, क्योंकि मैं बहुत सारे resumes देखती हूँ, और हर country के resume, this is also a part for DAD, कि आपको अपनी resume या अपना CV submit करवाना होता है. तो पाकिस्तान में जिस तरह हम resumes बनाते हैं वो मुख्तलिफ है जो यहाँ यूरोप में accepted होते हैं. हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर एरिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये नॉर्म है कि आप अपनी सीवी में अपनी पिक्चर नहीं डालते, और आप पहले अपनी एजुकेशन डालते हो और फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हो. यूरोप में उल्टा होता है कि यू डू पुट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, इट इज समथिंग दैट दे अप्रिशिएट. अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारा डालते हो, और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले डालते हो एज कम्पेयर टू एजुकेशन. आपकी एजुकेशन बाद में आती है. ये सब कुछ रिसोर्सेज आपको यूरोपास वेबसाइट में मिल जाएगी, विच आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप नेटवर्क्स में हैं, या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको यूरोपास का पता होगा. या लिंक्डइन में भी सीवी और रिज्यूमे बिल्डिंग सर्विसेज होती हैं, आप वहाँ पे सिर्फ अपना डाल दो कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगा, विच यू कैन ऑफ कोर्स एडिट लेटर ऑन योर ओन. तो मेक श्योर इट्स नॉट मोर देन 2 पेजेस, क्योंकि अगर 2 सफ़ों से ज़्यादा है तो इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. हर डॉक्यूमेंट की एक लिमिट होती है. मोटिवेशन लेटर शुड नॉट बी मोर देन 1500 words, which is almost 1.5 page. Your CV should not be more than 2 pages. Until you're an academic, अगर आपका academics में है या अगर आप academics में जाना है वो अलग बात होती है, लेकिन for normal programs not more than 2 pages. 1 page is ideal, but not more than 2 pages. Yes, some basic info about your CV and why is it so important. मैं इसके लिए अलग से कर रही हूँ because this is one of the biggest issue I have seen in applicants, कि उनका जो biggest reason for rejection होता है which is CV, because उनको ये नहीं पता होता कि CV को बनाने का एक particular तरीका होता है for DAD. It should include your school and academic qualifications, your professional experience, of course, should also provide information on your key skills, for example languages and computer skills. जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो स्किल्स देखे जाते हैं वो या तो कंप्यूटर स्किल्स देखे जाते हैं. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज आती है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है, या आप एडिटिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फोटोशॉप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्पेसिफिक नीड ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम है, always make sure that you mention it in your CV, because the purpose of the CV is to present your capabilities in a clear and concise manner. और आप जितना अच्छा इसको कर सकते हो उतना of course it just increases the chances of you to be selected in a scholarship. Yeah. Right. These are some formalities. This is just not for the CV, but this is for all of the documents that you make. That your CV or any other document should be written in the same font. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इसको अमूमन स्टूडेंट्स ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन मैं इस पे फोकस और नहीं कर सकती कि आपका फॉन्ट साइज, आपका फॉर्मेटिंग और आपकी ये चीज़ें, ये सब कुछ नोट होता है. और अगर आपकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे है, आपने बेहतरीन लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा हुआ है और आपकी सीवी बेहतरीन है, लेकिन आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या उसका फॉन्ट आगे पीछे हुआ है, या इट्स जस्ट रियली हॉरेबल टू लुक एट, यू विल बी रिजेक्टेड. अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ इट वर्क्स. So make sure that your CV or your motivation letter is legible, digestible. Make sure it's in the same font, and also given the fact that 11 or 12 point is the best, or Times New Roman or Arial is the best way to go, or Georgia if you want to be a little fancy. Don't do it in italics or whatsoever. That does not look good. When you're applying, and of course correct spellings, attention to details. I have been a part of hiring and recruiting as well. We see spellings. हम देखते हैं कि spelling mistakes हैं और details में नहीं, nitty-gritties में नहीं पढ़े हुए, तो we do tend to reject candidates कि जिन्होंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था. So make sure your CV does not have formatting errors or spelling errors. That is very, very important, as well as your motivation letter and all of your other documents. Right. I think this we can skip because yes, for your motivation letter, both for your motivation letter and for your CV, you can also, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास कुछ relevant certifications हैं या हमारे पास कुछ relevant experiences हैं, हमें क्या वो ऐड करने चाहिए क्योंकि हमारी CV की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है.
that would again depend on your program that you're applying. For example, अगर मैं अपनी case दूँ, I applied for something in international development, so it was good for me to provide my publications, to provide my civilian services or military services or trainings, etc. तो वो सब उन्होंने मेरी जो application उसको strengthen किया था basically. तो आप अपने उसमें देख लें, for example, if you're a programmer, आप बता सकते हो कि आपने ये program किया, या अगर आप developer हो तो आप बता सकते हो आपने ये develop किया, और आप उसको hyperlink कर सकते हो अपने CV, which is always a good idea. But if you're hyperlinking something, make sure that the link is clickable and openable. अगर आप hyperlink कर रहे हो कोई चीज और वो clickable या openable नहीं है, तो वो बहुत बुरा impression जाता है. So make sure everything works on your documents, both on your motivation letter as well as on the CV. Yeah, this of course. On completing your CV, you have to add relevant documents. It includes your academic certificates, both from school, university, and professional references to date. Professional references. इस चीज पे मैं एक अलग slide add करना चाहती थी, लेकिन I think I can just talk about it here. References are very, 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 very important. I cannot stress this more. हमारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कहते हैं कि हमें एक रेफरेंस चाहिए, वो बहुत जनरल से टेम्पलेट बना के दे देते हैं कि ये स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, इन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की, एंड दिस इज ही इज अ वेरी बोनाफाइड स्टूडेंट, दैट इज ऑल, यू नो, वो फौरन रिजेक्ट हो जाता है. आप जिस भी प्रोफेसर या अपने किसी एम्प्लॉयर से आप रेफरेंस लेटर मांग रहे हैं, तो मेक श्योर दैट पर्सन नोज यू वेरी 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 वेल. I think मेरी सिलेक्शन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि I had a very strong reference letters. DAD आपसे 2 reference letters मांगता है, सब scholarships आपसे reference letters मांगते हैं. इनकी unfortunately हम importance को overlook कर देते हैं, लेकिन let me tell you these are something most important, क्योंकि I've seen the scholarship process going forward, और वो reference letter बहुत अफॉर्ड से पढ़ते हैं. तो जो भी आपका प्रोफेसर, आपका एम्प्लॉयर जो आपको दे रहा है, तो मेक श्योर दे यू वेल. फॉर एग्जांपल जो जिन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था, मैंने उनके साथ एक रिसर्च पेपर लिखा था, जो उनको रिसर्च पेपर बहुत पसंद आया था. तो उन्होंने उससे कोट किया था कि इस स्टूडेंट ने ये रिसर्च पेपर लिखा था, ये आइडिया शी बॉट इट टू द टेबल, कि जो पहले कोई नहीं लाया, एंड विच आई थॉट वाज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि उसने एक न्यू सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी पुट कर दी थी कि हाउ relationships between two countries, क्योंकि international relations था, so I did give a theory of how relationships of Pakistan and another country can be bettered अगर हम इन चीज़ों पे काम करें, क्योंकि ये हमारे sensitive points हैं. तो उन प्रोफेसर ने वो mention किया था that he really liked this research part of me, and he thinks that I would be a great addition to DAD because of my research potential, given the fact that I can give good policy suggestions. उससे ज्यादा ये भी कि रेफरेंस लेटर में उन्होंने मेंशन किया था कि आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द DAAD. मेक श्योर आप जो भी रेफरेंस लेटर लिख रहे हैं वो एक तो पर्सनल हो, दूसरी बात उसमें आपके एट्रीब्यूट्स हो कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. अगर आप आपके पास गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे हैं, अगेन वेरी स्पेसिफिक टू योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, उनको हाईलाइट करें, उनको मेंशन करें और बताएं कि व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट, बिकॉज देयर आर more than 100,000 applicants each year. Then why are you the one we have to choose? Because you have this, which is something outstanding. ये बहुत जरूरी है प्रोफेशनल रेफरेंसेस में हाईलाइट होना. और ऑफ कोर्स देन अगेन द थर्ड पार्ट कि DAD को मेंशन किया जाए कि ये रेफरेंस लेटर DAD के लिए. प्लीज डू नॉट हैव जस्ट वन रेफरेंस लेटर फॉर ऑल स्कॉलरशिप्स. वन मोर वेरी बिग मिस्टेक्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डू, एक जनरल बना देते हैं और बस जो स्कॉलरशिप नजर आए उसमें उसी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट हाउ यू विन स्कॉलरशिप. एवरी स्कॉलरशिप शुड हैव स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स. अगर आप DAD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर आपके सब डॉक्यूमेंट्स DAD को रिफ्लेक्ट करें. जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके मोटिवेशन में भी लिखा होना चाहिए, आपके रेफरेंसेस लेटर में भी लिखा होना चाहिए, और आपकी CV ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जो आपका जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर साइंस है, सही, आपकी CV में वो सब कुछ होना चाहिए कि जो आपने अपनी फील्ड में किया है, या आपकी किसी तरह आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या आपको स्ट्रेंथन करता है, या लीडरशिप रोल्स हो, आपने कोई टीम लीड की है, या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, या आपने कोई वर्कशॉप लिया है, वो भी एक अच्छी एडिशन होती है. पहली बात. Yes, certified documents. That is something also very important. आपने अगर कोई internship में mention की है, for example, या आपने कोई courses, apprenticeship या trainings mention की हुई हैं, या आपने work experience mention किया है,
अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन है या आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन दिया है कि आप यहाँ पे काम किया है आपने, या इंटर्नशिप लेटर है, तो वो सब इनक्लूज की, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है एट द एंड, क्योंकि उनको ये कंफर्म होगा कि आपने ये सब कुछ किया है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आई टॉक टू माय प्रोफेसर जिन्होंने हमारी सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, कि आप जरा मुझे बता सकते हो कि आप किन मयारों पे आपने सिलेक्ट किया. तो उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा हमें ये होता है कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो कितनी सच्ची है, वो कितनी ट्रूथफुल है. तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंटेशन होगी, सर्टिफिकेशन होगी कि जो जो आपने अपनी सीवी पे मेंशन किया, क्योंकि आई कैन मेंशन दैट आई डोंट नो द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल, बट आई डोंट हैव सर्टिफिकेशन फॉर इट, देन यू नो इट डजंट स्टैंड एनी पॉइंट दैट इट, you know, you can say anything you want in a piece of paper. अगर आप उसके पास, आपके पास कंफर्मेशन है. लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन है from Bill Gates himself कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया है, तो of course that would then make you the perfect candidate to be selected to a program that say has computer science as a major. So make sure you have these certificates. If not, it's a good idea अपने एम्प्लॉयर से या अपने प्रोफेसर से या अपने ट्रेनर से उनको रिक्वेस्ट करने के, मेक श्योर देयर साइंड एंड स्टैम्प्ड. इफ नॉट स्टैम्प्ड, मेक श्योर देयर साइंड एंड डेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट इनक्लोज योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांग रहे होते हैं, प्लीज ओनली इनक्लोज कॉपीज, क्योंकि जब ये एक बार चले जाए, अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट बी टेकन बैक. जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चाहे वो आपकी डिग्री है, चाहे वो आपकी कोई भी सर्टिफिकेट्स जो ये आपकी अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग्स को मेंशन करते हैं, उसकी हमेशा कॉपीज कीजिए, क्योंकि यू विल नॉट बी गेटिंग देम बैक. सो मेक श्योर देयर ईदर कॉपीज एंड सर्टिफाइड कॉपीज. फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी डिग्री की कॉपी भेज रहे होते हैं, तो वो मेक श्योर कि वो HEC या IBCC या जो भी आपकी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेन ऑफिस जो भी है, उससे सर्टिफाइड, स्टैम्प्ड और अटेस्टेड हो. और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपकी CV के अकॉर्डिंग होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले ये मेंशन किया है कि से यू वर्कड इन से डिलॉयट, तो डिलॉयट के बाद आपने से यू वर्कड इन एरिक्सन यंग फॉर एग्जांपल, आपके पास पहले डिलॉयट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके पास एरिक्सन यंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू वर्क फॉर बोथ ऑफ देम, एंड दे शुड बी attached in simultaneous in chronological order according to your CV. Haphazardly कोई चीज नहीं देनी, कोई चीज नहीं बेचनी. Make sure they're in a way that is very readable, legible and very easy to digest, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर कैंडिडेट को बारीक बीनी से देखें, क्योंकि हजारों एप्लीकेशंस होती हैं. तो इसलिए जितना आपका सारा का सारा एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपके चांसेस उतने बढ़ेंगे टू गेट सिलेक्टेड. जितना इजीली सब कुछ रीड किया जा सकेगा या डाइजेस्ट किया जा सकेगा, उतना पता लगेगा that you are the perfect candidate for this scholarship. So please make sure that your documents are in accordance with your CV or in some readable, digestible form. This is a general example of a German CV. ये मैं presentation share की भी है मैंने, या आपको share हो जाएगी. कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपने CV कैसे बनानी है, तो दिस इज अ जर्मन CV बेसिकली. ये मैंने एक करियर काउंसलिंग सर्विसेज से ली थी यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू really really well in case you are applying for Germany, which is of course the matter of discussion of this presentation. So you can have this later, you can screenshot it if you want, लेकिन ये presentation hopefully आपको available हो जाएगी. Or at the end, these are some useful links that I include in this. इसमें ना सिर्फ DAD है, इसमें Chevening भी है, इसमें Commonwealth भी है, इसमें Rhodes भी है, इसमें Erasmus भी है, इसमें काफी सारे हैं, और ये सब ऑफिशियल लिंक्स है जहां आपको पता लगेगा. अगर आप इसे खोलोगे, जो DAD है, उसमें कैटलॉग आ जाएगा. I think I can show this to you right now as well, because it will make you easier. It will make it easier for you. So how do you find a scholarship? This is DAD की official website. You see कि यहाँ पे अभी फिल वक्त 181 scholarship options open है. Depends on whatever you want. Say programs, say you want to apply for a graduate master's degree and you want to apply for Germany, say, and subject is say engineering, for example. If you want only DAD funded programs, but if you don't want DAD funding programs, यहाँ पे सारे जो available programs हैं Germany में, DAD or not DAD, वो आ जाएंगे. So if I do this, yes, 30 scholarships are open at the moment for engineering students. आप इन सबको open करेंगे,
देखेंगे इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये अभी ओपन है फॉर यू. जैसा आप देख रहे हैं कि इट्स जस्ट नॉट DAD, ये different organization, because for example this is Baden-Württemberg Stiftung. This is an organization that helps students to study on, again, fully funded scholarship. So ये website सिर्फ DAD के लिए नहीं है, ये जर्मनी में सब प्रोग्राम्स के लिए हैं जो पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं. सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस एंड मेक श्योर कि आप इसको सही तरीके से यूज करो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग दैट DAD हैज ऑर्गेनाइज्ड. इंटरेस्टिंगली मैंने ये और किसी कंट्री का नहीं देखा इतना हेल्पफुल, एक ही वेबसाइट पे उन्होंने सब दिया हो. सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली 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 यूज, not only for DAD but any scholarship that concerns Germany itself. Again, यहाँ पे आप सिर्फ कीवर्ड्स डाल देंगे और अपनी रिफाइन कर देंगे सिलेक्शन. आपका जो भी प्रोग्राम टाइप है, अंडर ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल, फैकल्टी, अगेन एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू यू. एंड ये सब चीजें हैं which Germany offers as scholarships. So engineering, medicine, arts, music, sports, mathematics, natural sciences, law, economics, social sciences, etc., etc., etc. I think that's self-exclamatory. Or yes, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि do you want to study? आपको teaching करनी है, internship करनी है, research करनी है या language course करना है, वो भी यहाँ पे सारा का सारा available हो जाएगा. You just have to refine your selection, see the program, see the opening dates, see its requirements and apply to it. Just be prepared beforehand. So this basically marks almost the end of my presentation, and I am happy to take your questions at this point. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. Am I audible? जी. बेसिकली मैं तो पढ़ रहा हूँ फिलहाल पाकिस्तान में, लेकिन आई एम स्टूडेंट ऑफ अफगान स्टूडेंट और MS कर रहा हूँ पाकिस्तान में अंडर DARD स्कॉलरशिप. इफ यू नो कि उन्होंने लास्ट टाइम अनाउंस किया था पाकिस्तान में. तो आई वांटेड टू आस्क के नाउ आई वांटेड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मास्टर्स. मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, बट इंशाल्लाह बाय 26 आई विल बी ग्रेजुएटेड. सो इंशाल्लाह मैं अप्लाई करता हूँ इस पे. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. Of course, आप 6 महीने से 3 महीने पहले आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं जब आपका मास्टर्स खत्म हो. जिस तरह मैंने बताया कि DAD आप अर्लियर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट 3 to 6 months के गैप से आप अप्लाई कर सकते हैं to your next scholarship. Okay, thank you so much. Of course. मैम मेरी आवाज आ रही है? जी. आदियान अल्लाह मेरा नाम है और सॉरी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए. अपना माइक म्यूट कीजिए. जी मैम, मैं कहा थैंक यू फॉर दिस वेबिनार. और मैं थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में अपनी बता देता हूँ. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BS कंप्यूटर साइंस 23 में दिसंबर में GCU लाहौर से. उसके अलावा मेरा IELTS का जो ओवरऑल है वो 7 बैंड है और सब में जो 4 मॉड्यूल्स में 6 आया, सब में तकरीबन मिनिमम 6 है. ठीक है. और उसके अलावा मैंने दिसंबर के बाद मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं की. गैप है मेरा 1 साल का, लगा ले गैप हो गया. इस दौरान मैंने IELTS दिया था और साथ टीचिंग की थी कुछ. जैसे मैं CS का स्टूडेंट हूँ तो मैंने पाइथन पढ़ाई थी. कॉमसैट के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको, सही, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास. उसके अलावा वो 2-3 सर्टिफिकेट्स मैंने लिए थे कोडिंग कंपटीशंस में, हैकाथॉन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था मैं. तो उसके अलावा मेरे जो LOR है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. 2 LOR है, दोनों प्रोफेसर से मैंने लिए थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो. जैसे आपने बताया था कि वो टेम्पलेट उन्होंने सिंपल लिख के दे दिया था. तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अब मेरी उनके साथ इतनी LOI भी नहीं है. वो सर चले गए भी है यहाँ से स्वीडन. उसमें यह है कि ये मैटर नहीं करता कि प्रोफेसर कितने बड़े हैं या कितने सीनियर हैं. ये मैटर करता है कि वो प्रोफेसर आपको कितने अच्छे तरीके से जानता है. अगर प्रोफेसर नहीं तो आपका आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि जो आपका LOR है वो स्ट्रॉन्ग है और वो स्पेसिफिक है आपके स्पेसिफिक स्किल्स पे. क्योंकि अगर आप बहुत जनरल सा लिखेंगे तो वो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है. सो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी
जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। तो अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी एम्प्लॉयर आपका जो आपको अच्छे से जानता है, वो आपको जानता है आपके स्किल सेट क्या है और उस पर वो बात कर सकते हैं, तो आप उनसे कहें कि आपको सिर्फ एक पेज का लिख के दे दें, या आप खुद उसको लिखते हैं, उनसे कहें वो साइन कर दें। ज्यादा बेहतर यही होता है कि अगर वो खुद लिख सकते हैं तो। अच्छा, अगर मैं दोनों प्रोफेसर से ना लूं, लाइक कि मैं दो जो जिनके पास मैंने ट्रेनिंग की थी एक उनसे ले लूं, और एक जो मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने टीचिंग की थी एक उनसे ले लूं, बिल्कुल तो ठीक है। ओके है। और ये मैंने पूछना था कि ये ईमेल वगैरह तो आती है प्रोफेसर को फिल करने के लिए, या हम लोग जो पीडीएफ हमें मिला होता है प्रोफेसर से साइन करा के वो हमने अपलोड करना होता है? ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जो पीडीएफ मिला हुआ होता है वो अपलोड करना होता है, लेकिन फिर उन प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जाता है। जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी है प्रोफेसर के लिए उस पीडीएफ में इंक्लूड करें, अपना कोई भी टेलीफोन नंबर या अपना ईमेल, जिसमें डीएडी जो सिलेक्शन कमेटी है वो उनको रीच कर सके। तो अमूमन ये होता है कि उनको आपको पीडीएफ अपलोड करना होता है। ओके, थैंक यू मैम। ऑफ कोर्स। Hello. हेलो। Hi, Harim. First of all, thank you so much for sharing such a detailed information about the scholarship. So I do have couple of questions. Would you mind if I share my query with you? Of course, absolutely. Sure. So basically, recently I did apply for this Shivling scholarship, but I do have these concerns in my mind. I've been working for the past 6 to 7 years. In marketing domain, so my concern is, so first, is this scholarship only valid for the graduates who are जो fresh graduates होते हैं या जो recent graduates होते हैं, first उनके लिए ही valid है, and then secondly, since I've been working for this organization, a Saudi based, a KSA based organization, but on remote basis. So do you think would that make an impact on my application, or how would that work? And sorry, I'm just taking it a bit long. So and then my third question is, I've been listening your sessions. So you have mentioned majorly, if I'm not wrong, majorly so social sciences and then political sciences पे ज़्यादा focus होता है इस scholarship का. So my I've been working for digital marketing domain and then marketing majorly. So do you feel कि इसमें इनकी scholarships open होती हैं या नहीं होती हैं, और what's your take on this? पहली बात, आपके गैप वाला क्वेश्चन, गैप का ये हिसाब किताब है कि डीएडी अलाउज ऑलमोस्ट 6 years गैप। मेरे साथ ऐसे भी फेलो थे who were above 40 years old who were doing their masters। अगर 6 years से ज्यादा है आपका गैप, तो गैप नहीं कहूंगी, मतलब कि आपने बैचलर्स और मास्टर्स के दरमियान का टाइम एप्लीकेशन, आपके जो लास्ट एजुकेशन है, अमूमन ऐसा होता है 2 से 3 साल के स्टूडेंट्स को ज्यादा किया, लेकिन 6 years तक, अप टू 6 years इज एक्सेप्टेबल। अगर इससे ज्यादा है तो आपको सिर्फ एक रिटन एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग नाउ, और वुड इट बी सूटेबल फॉर यू टू रिटर्न स्टडीज, क्योंकि आप बहुत ऐसा आउट ऑफ टच रहे हो स्टडीज से, तो यू जस्ट हैव टू क्लियर दैट ओके आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट kept me in the study domain, तो just an explanation of one page that, और वो उसमें acceptable हो जाता है। लाइक ऐसा मेरे साथ ऐसे भी फेलोज थे who were from El Salvador, जो काफी मतलब एजेड थी, but still got scholarship, so that is not a problem. Second thing, आपका जो रिमोट वर्क है, अगर वो आपकी डिग्री से रेलेवेंट है, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में ही, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई करें तो 120% रेलेवेंट है। इट डज नॉट मैटर आप कहाँ काम कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और उस पर आपने स्किल सेट क्या गेन किया। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग में आपके कौन कौन से सही आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, या आपने कौन कौन से स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, या आपने जो कोई भी जिसके लिए आप काम करें क्लाइंट के लिए, उनकी जो सेलिंग बेसिस है उसको कितने परसेंटेज, कितना किया, 30%, 40%, जितना भी किया आपने। तो all of these figures, it does not matter if it's remote or no. और apologies, आपका third question क्या था? अगर आप repeat? Yeah, so yes, I believe these were the 2 questions, and then third, yes, again यही था कि so majorly my concern is कि I've been working for the past 6 to 7 years, but मेरा जो masters था that was back in 2019. So that would make a gap of around 5 years if we can, do a maths from 2019 till 2023. So I think that would be 5 years, right? If I'm not wrong. Yes. So yeah, I totally get your point. Ke 6 years or 7 years का gap
वैलिड होता है. सो I've been working for the past 6 to 7 years, and then मेरा जो last masters है that was back in 2019. So उस पे I was just concerned कि am I eligible to get my scholarship में apply कर सकूँ या नहीं कर सकूँ. आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, तो आपको उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप एक दूसरा मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं. आप ये कह सकते हैं कि मे बी वी फाइंड दिस मास्टर्स मोर सूटेबल गिवन द फैक्ट दैट जो डीएडी ऑफर कर रहा है व्हिच इज मोर अलाइन्ड टू योर फ्यूचर गोल्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, देन इट इज ओके. बिल्कुल होता है ऐसे, और हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट थे भी सही जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ था और वो फिर मास्टर्स करने के लिए आए थे. सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. All right, great. Thank you so much, Hari. Of course. Yeah, hi Hari, how are you? It Hello, was I'm indeed fine. a very insightful session from you. So I'm not from Pakistan, I'm from India. I have done my bachelor's in civil engineering from the Aligarh Muslim University, and I have interest towards sustainability. Like it's not about, the question is not about DAR scholarship, but I want to know, like, sustainability consultant, this field of sustainability, is it good in the European region, particular to Germany? Like, should I pursue this as a career? Like, should I search for master's program in Europe about sustainability and pursue this as a career, or not? Like, I have seen that Big Four, the KPMG, Deloitte, PwC, etc. They have their openings for sustainability. I want to know about if you know. Absolutely. I would 120% recommend it because Europe is shifting very much towards sustainable development and sustainability literally in everything. If you do something of that sort, I can say that you can be actually a very good candidate as well. And you being from India, so it's fortunate for you that at the moment Germany is basically opening its doors more towards Indian students and Indian working people. So at the moment, for you as an Indian national, it is actually better for you to come to Germany because, like I said, they're opening their doors towards Indian students, Indian workers, because they think that they do require more people. And sustainability is something that is being focused on here to a very great extent. And there's a whole scholarship on it for sustainable development and sustainable. It includes everything from engineering to IT to computers to policy designing, etc., etc. So definitely, and 120% recommended. And again, since the policies are being more Indian friendly, so I would 120% recommend that you do that. Thank you so much. Of course. Maybe I can answer some of the questions from the comments, which is अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जावेद बात कर रहा हूँ. कीफी कैसे हैं? जी, मैंने अप्लाई किया है दात प्रोग्राम में रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज में, और यूनिएसएस ने मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो फॉरवर्ड की यूनिवर्सिटी को. सो हाउ मेनी चांसेस आई विल गेट एडमिशन एंड स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप के लिए आपको स्पेसिफिक लाइक आई सेड आपको अप्लाई करना होता है. अगर आपने सिर्फ यूनिअसिस्ट में अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ एडमिशन मिलेगा वहाँ पे. लाइक आई सेड अगर आप डीएडी के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आपको डीएडी के पोर्टल से ही अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था. जी जी सर, मैंने यूनिवर्सिटी बहुत लेट ज्वाइन किया क्योंकि इधर पर नेटवर्क इशू था, और मतलब यूनिअसिस्ट ने मेरा जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया. अभी अगर मेरा एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी मेरा एप्लीकेशन जो है वो दाद के लिए रिकमेंड करेगा, तो फिर कितनी चांसेस है दाद के? चांसेस तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे. एंड लाइक आई सेड दाद का सिर्फ डीआईडी का थोड़ा सा फर्क ये है कि आपको उसके स्पेसिफिक लिंक पे अप्लाई करना होता है. इस केस में क्या होगा कि आप यूनिवर्सिटी का जो अपना स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल होंगे. अनफॉर्चुनेटली दाद के लिए या डीआईडी के लिए आपको डीआईडी की स्पेसिफिक लिंक पे अप्लाई करना पड़ता है, या जो डेटाबेस में जो मेरी प्रेजेंटेशन है होपफुली ऑर्गेनाइजर्स आपके साथ शेयर कर देंगे, उसमें एक लिंक है, उसमें जो भी लिंक आए या उसमें ईमेल आए आपको उसके थ्रू अप्लाई करना है टू बी कंसिडर्ड इन डीआईडी. अभी एट द मोमेंट आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होंगे और उसका चांस मेरिट पे ही होता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, उस हिसाब से सिलेक्शन होगी कि इन केस आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं. थैंक यू गॉट इट. Does anyone have any other question, or should I start reading from the chat now? Hello, ma'am. Am I audible? Okay. Hello, yes.
Actually, I have a concern towards writing the statement of purpose, and because I'm getting very struggle towards what are the things should I mention specifically, and do you think that the story behind the SOP matters the more as compared to the technical skills? And my second question is, uh, in India also you have to write your LOR and you give to the professor. And regarding to that, the length of the LOR should be of 2 pages or the maximum is 1 pages. These two questions are there from my side. Of course. So first, so LOR is usually 1 page. So the least you do, the better it is. LOR is usually just 1 page, and you have to make sure in 3 to 4 paragraphs you say everything that is required. Sorry, आपका second question क्या था? I did not catch that. जो आपका first question था basically. Could you repeat that, please? I just wanted to ask about the statement of purpose. Yes. स्टेट ऑफ पर्पस की बेसिकली मैं ये कहूँगी कि उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. आपको नहीं पता होता कि इनको कौन सा स्टेट ऑफ पर्पस अच्छा लग जाए, कौन सा ना अच्छा लगे, लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक सेट पैटर्न ही होता है जिसमें सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड शेयर करना होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर आपको बताना होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है अपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में, और फिर उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ता है. सोल्यूशन के बाद आपको बताना पड़ता है दैट व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट, और फिर एंड पे आपको ये बताना होता है कि व्हाई and how DAD or Germany can help you solve this problem. Again, ये डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड. अगर आपका टेक्निकल फील्ड है, अगर आप इंजीनियरिंग में है या IT में है, तो जितना फोकस आपका आपके टेक्निकल साइड पे ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट बनाएगा. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेस की तरफ है या इसके तो जिसमें जरा ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसमें स्टोरी लिखना ज्यादा बेहतर है. उसमें अपने आप को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना कि हाउ यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट दैट कैन ब्रिंग a change in the world. This is for social sciences, something that is more not so technical. Like in technical fields के लिए, make sure that you mention all of your technical capabilities. Like I said, अगर आपने कोई website develop किया या आपका project है इस किस्म का, या आपने कोई इस किस्म का initiative spearhead किया which is making a difference in the lives of people, then you mention that. But generally, it's nice कि अगर आपकी जो statements of purpose या letter of motivation है जो भी है, वो रीडेबल है और वो इंटरेस्टिंग है और बोरिंग नहीं है. सिर्फ वो ये नहीं बताता कि आपने ये किया है, ओके फाइन दैट्स ग्रेट, लेकिन व्हाट आर यू गोइंग टू डू. मतलब ओके ग्रेट, आपने जो कर लिया दैट्स ग्रेट, लेकिन आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप आगे किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को, एक्सेट्रा, और किस तरह आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है DAD के लिए. अगर आप इन्वेस्ट किया जाए तो यू कैन गिव रियली पॉजिटिव रिजल्ट्स टू योर कम्युनिटी. सो बेसिकली ये मकसद होता है उसका. I hope I answer your question well. Assalamualaikum. Hello. Hope you're doing well, and thank you so much for such a insightful lecture. Actually, my question was that I am currently doing masters in CS engineering, and it's about to end this year, but I haven't learned a lot of skills from that, and I am planning to do my double masters from abroad. और उसके लिए I will apply for scholarships. But मुझे ये पूछना था कि is it good that I apply for masters or should I apply for PhD by doing some courses and skill set में अपना courses से set कर लूँ, and डिग्री के लिए आई शुड अप्लाई फॉर PhD. तो आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज्ड इन दिस रिगार्ड कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन माई 3 years टू मास्टर्स और वो अभी तक एंड नहीं हुई है. होपफुली दिस ईयर इट विल बी एंडेड, लेकिन अभी मेरा ये क्वेश्चन था. सही. ये डिपेंड करेगा कि आपके स्पेसिफिक करियर गोल्स और फ्यूचर गोल्स क्या हैं. अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो PhD 5 साल की होती है, यहाँ पे मिनिमम 5 साल की होती है. तो अगर आपको लगता है कि आप 5 मजीद साल स्टूडेंट बन के रहना चाहते हो तो PhD वुड बी रिकमेंडेड. या अगर आपको फॉर एग्जाम्पल टीचिंग की तरफ जाना है या आपको एकेडमी की तरफ जाना है, लेकिन क्योंकि आपकी फील्ड टेक्निकल है, so it should focus more towards, getting practical skills of it rather than, having an academic background unless you do not want to end up into the teaching side.
तो मास्टर्स का क्या है कि डीएडी में आप 1 साल का भी मास्टर्स कर सकते हो. सो अगेन इट वुड डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर चॉइसेस कि अगर आप स्टूडेंट बहुत अरसे तक रहना चाहते हो तो ऑफ कोर्स पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के बाद आपके ऑफ कोर्स आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं टू लैंड अ जॉब और टू लैंड पोजीशंस. मास्टर्स का ये है कि यू कैन स्टिल हैव अ सर्टिफिकेशन और उसके बाद आप फॉरेन जॉब मार्केट में इंटीग्रेट हो सकते हो बिकॉज योर फील्ड इज टेक्निकल, which is at the moment ideal क्योंकि at least Germany में they do need technical people at the moment. तो Okay. डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर गोल पे. Sorry, please. Actually, I am planning to take courses from Atom Camp. They have really nice courses on, especially machine learning. That is my field. So I would personally do a practical job, but I am planning to move abroad or due to some reasons. तो इसी वजह से I need a reliable option जिसकी basis पर I should take the decisions accordingly. तो I hope it makes my point clear to you कि what I want. Yes. तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दें क्योंकि उसका जो दुरानिया है वो थोड़ा है, ड्यूरेशन थोड़ा है. उसमें ये होगा कि क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो बहुत टेक्निकल है और आपको 100% जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे एट द मोमेंट दे डू रिक्वायर डेवलपमेंट इंजीनियर, डेवलपर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट और आईटी पीपल और नॉट नेसेसरली स्पीकिंग जर्मन. तो आई वुड से कि मास्टर्स इज अ गुड चॉइस कि अगर आप वर्कफोर्स में ही इंटीग्रेट होना चाहते हैं और वही आपका गोल है एट द एंड, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यू शुड अप्लाई फॉर मास्टर्स फर्स्ट. Thank you so much. It makes me clear. Of course, happy to help. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Okay, we can have Sadiqullah first, and then we can have Ashma Khan if that's okay. Okay, ma'am. I'm Sadiqullah from Afghanistan. Currently, I'm here in Pakistan. Ma'am, recently I got a rejection from Helmut Schmidt and Social Protection. Basically, वो अब कह रहे हैं कि मतलब अब अगर आप ऐसे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं. My question regarding is कितना खर्चा आता है या am I go for that कि मतलब आप मैं इस तरह आ जाऊं. उसमें यह है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस हिसाब से है कि केवल अफगान स्टूडेंट्स के लिए बाहर थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा है लेकिन इट्स नॉट इजी. पहली बात वीज़ा जो है वो आपका एटलीस्ट 1-1.5 साल कहीं नहीं क्या आपको वीज़ा आने में, क्योंकि डीएडी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्रेफर्ड होते हैं. अगर आपका जीपीए 3.7 आउट ऑफ 4 से ऊपर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपके वीज़ा को आने में. और दूसरी बात, जहाँ तक आपका खर्चे की बात है वहाँ पे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको 11,200 यूरोस आपको उस अकाउंट में डाल के ब्लॉक कर देने पड़ेंगे, जिसका मतलब 35 लाख पाकिस्तानी रुपए. ये खर्चा नहीं है आपका, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है आपकी कि आप गवर्नमेंट हेल्प पे रिलाई नहीं करेंगे और आप सेल्फ सस्टेनेबल हैं. जो खर्चा होता है वो आपका जी. अगर कोई है बायर में, लाइक माय ब्रदर वाज सेटल इन फ्रांस, तो कैन आई मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ? आपको फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि उनका फ्रांस में जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाएं और एक लेटर बनाएं, लेटर ऑफ डिपेंडेंसी. उसमें वो बेसिकली शो करेंगे कि आप या स्पॉन्सरशिप, वो आपको या तो स्पॉन्सर करेंगे या डिपेंडेंस का लेटर देंगे. उसमें हाँ जी आपके लिए आसान हो जाता है. ब्लॉक अकाउंट आपको एज अ स्टूडेंट फिर भी बनाना जरूरी है, लेकिन स्पॉन्सर के होने से ऑफ कोर्स आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन, मेरा जीपीए जो है ना 3.4 है, तो इसके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है? अभी हम लोगों को लिंक बाद में मिला तो इसलिए मैं अगेन पूछ रहा हूँ. 3.4 is a good CGPA और अगेन CGPA इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी खुद की पर्सनल इनिशिएटिव्स या प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स और रिसर्च एक्सेट्रा होती है. स्कॉलरशिप तो कोई भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको ऑफ कोर्स कन्विंस करना है स्कॉलरशिप्स को कमेटी को कि आप परफेक्ट कैंडिडेट है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए. तो मैं ये नहीं बता सकती आपको कि 3.4 पे कौन सा स्कॉलरशिप, आप किसी और सब स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं और आपको कोई सा भी मिल सकता है. लेकिन ये है कि आप ये देख लें कि आपके केस में आपकी जो मेजर है या आपका जो लाइफ गोल्स हैं उसके लिए उसमें सबसे ज्यादा अलाइन क्या कर रहा है. तो उसी हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उसी मुल्क में रहना है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो अगेन डीएडी इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपसे कोई बॉन्ड साइन नहीं करवाते. अगर आपको यूके जाना है जहाँ पे एडमिशन या वीजा प्रोसेस ज्यादा आसान है और जल्दी आ जाता है, एडमिशन भी जल्दी मिल जाता है, वीजा भी जल्दी आ जाता है, लेकिन आपको अपनी मास्टर डिग्री के बाद हर हाल में वापस आना होता है.
So again, that would definitely depend on what you want to do अपने future में. Okay, ma'am. Thank you. Of course. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. जी मैम मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है 2020 में. तो उसके बाद मैंने मैम 2 साल का वर्क किया, मतलब वर्क एक्सपीरियंस है. मैंने 2 साल के बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी. तो उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी. तो मेरे पास अभी एक टाइम बाकी रह गई है CSS की. तो मैं सेफ जोन पे रहने के लिए ना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसके डैड के लिए भी मतलब DAD के लिए अप्लाई कर दूँ. तो मैं 2 सालों को कैसे कंपनसेट कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन में? काइंडली मुझे थोड़ा इसमें गाइड कर दीजिए. Sure. So जर्मनी में एक गैप होना या CV में गैप होना कोई इतनी बुरी बात नहीं होती. यहाँ पे अमूमन जो जर्मन स्टूडेंट्स खुद भी होते हैं वो हाई स्कूल के बाद 1 से 2 साल का गैप लेते हैं. तो CV में जो गैप होता है वो पाकिस्तान में बुरा समझा जाता है. यहाँ पे दैट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इतना बुरा नहीं समझा जाता. आपसे भी कह दे कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने किया था या जस्ट टू नेविगेट यू थ्रू वे थ्रू कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं. तो गैप है भी सही आपकी CV में या आपके एकेडमिक्स में या वर्क एक्सपीरियंस पे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एटलीस्ट जर्मनी में इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैम जी मोटिवेशन लेटर में ये वाली चीजें मैं मतलब लिख सकता हूँ कि मैंने इसके लिए अपनी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई किया था, इसके लिए मतलब रिजल्ट वगैरह शो कर सकता हूँ, करने चाहिए, या काइंडली मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए अपनी जो मैंने अपने. जी अगर आपको लगता है कि ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन करेगा तो बिल्कुल कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंसेस के लिए अप्लाई करें और आपने तब कंपैरेटिव एग्जाम के लिए दिया था तो जरूर कीजिए कि यू पास्ड इट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम परसेंटेज जो CSS पास करते हैं. तो ऑफ कोर्स वो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन करेगा क्योंकि इससे पता लगेगा कि यू हैव व्हाट इट टेक्स और आप यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. तो इन केस आपके पास अच्छे इस किस्म के रिजल्ट्स हैं और लाइक आई सेड सर्टिफाइड हैं तो प्लीज इंक्लूड देम. जी बिल्कुल मैम. दूसरा काइंडली ये बता दीजिए कि मैंने जो केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ ये दूसरे जो आप प्रोग्राम बता रही हैं सोशल साइंसेज के लिए, इनके लिए एलिजिबल हो सकता हूँ मैं? आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर देना पड़ेगा साथ कि आप अपनी डिग्री क्यों चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको अगर लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर ज़्यादा सोशल साइंसेज में है और आप उसको लेटर में प्रूव कर सकते हैं तो आप एब्सोल्युटली एलिजिबल हैं. जी मैम, थैंक यू. ऑफ कोर्स. Salam ma'am. Wassalam. I hope you are fine and doing well, and thank you for this session and from your team. Yeah, I have some questions regarding regarding the DART scholarship. I have completed my bachelor degree in computer science in 2019. Basically, I am from Afghanistan and currently living here in Pakistan. So my GPA was 3.96 from University of Peshawar, but due to the COVID pandemic happened and also then the situation of our country was not stabilized as well, and I was not having passport at that time. And that was the reason that I delay my studies further. I didn't apply to any country because the situation was not normal. Then later on in 2021, I have started my master degree in computer science as well, but I didn't go for research. I have just completed course base, and also I have applied for some scholarship and some categorized scholarship from DART. They selected me as well, but later on I just fill out all the DART portal and everything has been done, but later on they sent me a rejection, and the rejection was that I have completed my bachelor degree in 2019, and they said we only just accept like 2 years gap in the scholarship category, but I was having more than like 4 years gap. And the reason I didn't show my master degree because they already mentioned there that the second master we are not entertain that scholarship here as well. So for me, what will be the opportunity like to next, because I have scholarship, I had scholarship before as well as a refugee from Germany, like DAF scholarship, Hansard scholarship as well. And secondly, I have applied for the Helmer scholarship as well. Especially we were selecting like 3 universities, but the University of in Social Protection that they were providing the scholarship, they rejected me as well because my background like field of study was more sound computer science, but I have experience with NGOs as well, and currently I'm working at German embassy as well as an interpreter. So what are the best solutions for me, or you are considering something IT fields for me? So I want to know about these opportunity for me if you know about it. Thank you.
So first of all, they probably rejected it because you might not have included an explanation of why you're changing your degree and why do you have this gap. This is very important if you're doing so, if you're applying to something that is not in your bachelor's, or you're not, but you've not done in your bachelor's, or if you have a gap, or a gap is more than what the program requirement is. Again, the gap would also then be subjective to each specific scholarship on its own. Like I said, in my case, it was HSP as well, DAD HSP as well. And for me, I had a fellow with me who had more than 7 years of a gap between her bachelor's and her master's. Like I said, she was almost 40 years old. So this is not usually the case, but in this case, you will have to then provide a 1 to 2 pager of an explanation of why you're changing your degree and why did you have the stated gap, and so on. Secondly, in this case, if you think that the DAD might not be the best option for you, you can go on the database again and search for scholarships that are provided by the university itself. Those are, of course, less in competition because not a lot of students know about it, and not a lot of students can navigate this database that I just showed. In case you saw it, not a lot of students know how to do this, unfortunately. So what you can do is go to a specific university that you're interested in. For example, I think social protection was in Hochschule Bonn, if I'm not wrong. You can just go to the website of Hochschule Bonn and see the social protection degree and see in case they provide scholarships within the university. If not, you can also come as a self-funding student. And the best thing about you being an Afghan is that they do prefer Afghan students and they do help them to get to their academic goals whatsoever. So there are big chances that in case you apply as a normal student as well, that you can get a scholarship, say, in your second or in your third semester here because of your background coming from a war country. So that could also be an option for you to take. Just come with a normal admission or a university-based scholarship, not the DAAD. And then apply for the scholarship later on, or just be on the scholarship of the university, in case Germany you think is the destination you want to be in. Yeah, thank you so much. Yeah, that was the reason that when I just start reasoning with them, so it was mostly in a portal. So we were just texting as well on this solution that they were accepting only 2 years gap, and I was just sharing like that was the COVID and also situation of our country. So that makes some things delay for me as well. But they were saying like we can't do anything because this is the criteria we are providing to each student. So then I satisfied because there should be like some procedure to follow as well. And also this should be like this because this is for all students. But my concern is about like I was searching because in IT field they're like searching more people over there or more students even in Germany or European countries as well. But I didn't find any satisfied link of DART application towards those IT fees to study further because I'm more interested, and generally I have studied in my bachelor and also master degree in computer science, but I want to go more into specialization field, like I want to go for artificial intelligence. So this is my field of study, so I have reason as well if I do second master because I didn't find any good course that provide inside here in Peshawar for me. So that's why I have this reason with me as well that I want to do artificial intelligence with advanced as well. But if you know any IT or concerned DART categorized scholarships, so it will be really good if I know because I have searched and I didn't find it. Okay, so again, you can search on the database, and if there is an availability, it will show up. If not, in case you want to come as a professional, then you can also apply for the Chanskarte. That is basically a visa for you to search a job here. And with that, you can also do your Weiterbildung. Weiterbildung would mean your further apprenticeship to be integrated into the IT system of Germany here. So you have more than one option, not just studies, but also as trainings or coming as here as a job seeker. That would again depend on your particular requirements. But again, the scholarship database that I just showed at the end of this presentation is the best way in case you want Germany as your destination to look for any scholarship or any study opportunity there exists in Germany. So yes, unfortunately they're not say marketed as per, but you have to find them like really quick. A simple Google search will not really help you. Let me tell you that. So again, this database, I can share the link here again. I can put it in the chat for everybody to see in case you for some reason missed it. Just search in this category your specific
field that you want to do your master's in, and it will show you all options, DAD or not DAD, in this category. If not, then you can, of course, broaden your search to other countries as well. For example, you can apply with the Netherlands, or they also offer their scholarships, government scholarship, or for example, France, it's with EIFL or with Austria or any other country that also does need IT professionals, because almost in the entirety of Europe at the moment needs IT professionals, but Germany in particular. So this, again, would be your best bet to search for any degree, especially if you want to be coming with a scholarship. Yeah, thank you so much, ma'am. And also, I have sent a follow request on LinkedIn, so I hope that you accept it. And also, in future, I want to communicate further on these things because I might need some help as well. So thank you so much for it. Of course, I'm happy to help. Harim, I'll just read you out the questions from chat and you can start answering them. Is that okay? Absolutely. Okay, the first question is, if we are fresh graduates and don't have 2 years experience, but during undergrad, we have worked part-time and volunteered or did leadership roles, are we eligible to apply? Absolutely. Like I said, and like I mentioned, it depends on your specific degree and your specific area of DAD you're applying for. In my case, I did not need any professional experience. I did not have that much of professional experience when I applied. So again, it would depend on your specific area or specific scholarship that you're applying. And yes, internships, part-time work, volunteerships, all of this counts as experience in DAD at least. It does not in Chevening, but in DAD it does. Okay, the next question is, LOR can be 2 pages. Ideally, no. DAD does give you this limitation of 1,500 words. So you have to make sure it is less than 1,500 words. 2 pages is about 2,500 words. Do not make it over 1,500 words, no. Okay, thank you. Are dependents allowed in PhD case? Yes. Dependents are allowed in any specific visa that you are on, but the dependent then, of course, will not get as... so you will get a little bit more of scholarship, but they will have to somehow provide for themselves because it is a little more expensive if you have dependent. But yes, they do cover you in the scholarship. Yes, they are allowed. But just one, or probably your wife or your husband, or in case you have a sick parent or a child, of course. Yeah. Okay. Is IELTS required for DAD? Ideally, it is always better to have certification. I think I did mention this. So it is not required in case your degree was in English or in German, but in case you have a German certificate from Goethe or TELES, which are the official institutes, then it is always better to have them. So it's always better to have an IELTS, yes. Okay, people can find specific courses related to computer science in the DAD catalog. Do you know anything about that? Well, the DAD catalog is at the moment the most relevant thing, but they cannot find it because they might not be open at the moment. At the moment, what is being seen there is which is open, so they can try at a different time to look for it. Okay. Another question is, they want to know about post-study work visa and PR possibilities in Germany. So after your degree ends, you can get either you can return or you get an 18-month job seeking visa right after your study. So that is a general norm here in Germany. So in case you want to be staying here or try to find work here after your studies, you can get from 6 months to 18 months, depending on your situation and your bank account health. So you can definitely apply for a job seeking visa right after your studies. A lot of my fellows did so, and they did get it from 6 to 18 months. So yes, that is a possibility. But you, of course, will have to fund your own self. The DAD will not be funding you in that case. Okay, got it. A few questions are about if there is a specific age limit that they can apply, or if 10 years gap between education can be accounted for and they can still apply. In case it can be accounted for, yes, you can apply, but 10 years is a little too much. Usually the limit is 6 years, but in case you can explain why is this gap 10 years, then yes. For PhD, it doesn't matter. For masters, yes, it does matter. Okay, someone is asking questions, asking an interview, and secondly, what can we do in interview for selection? So this is really difficult. So interviews would then also be very subjective and
specific to what the degree program is. If you are as me, if you're a part of the HSP, interviews are usually just a formality. They will ask you questions about your motivation letter, about how you envision yourself, and if you are a good fit in the German society, and in case you are the perfect suitable candidate. So it's usually just an informal conversation between your head course coordinator and you, where they just ask questions about your degree program, what you've done, what you've been working on, and whatever you write on your motivation letter. So in case whatever you've written in your motivation letter, you're pretty well aware of it and it is truthful, you should be good with the interview. It's usually a formality. Okay, I think these are all the questions I had. Abdul Rahman, do you have any question? You can ask now. Okay, I think this is it. Thank you so much, Hareem, for joining us today. And this session was very helpful. I'm sure it helped a lot of people. Thank you so much. Of course, I'm happy to help. In case there are some open-ended questions, please do reach out to me only on LinkedIn and I will answer your questions there. Okay, the presentation will be in the group chat. You can take it from there. The link for her LinkedIn will also be in the group chat. You can also get it from there. Thank you so much, everyone, for joining. Stay tuned. You can follow us on our social media, Instagram, Girlsfly, and you'll get more information there. Thank you. Thank you.